everyone, this is Rahul and you're watching my YouTube channel Crash Course. Please like, subscribe and hit the bell icon to get the notification. Let's start our video. Hello friends, today our topic is editing a worksheet. Microsoft Excel is an application software used to perform mathematical calculation. After entering data in a worksheet, you may need to make some changes in it. You can add some more data and edit its contents. Editing worksheet involves changing the cell contents, copying, moving data, and inserting or deleting rows and column. For editing a worksheet, first of all, we have to start Microsoft Excel. As you know how to start. So already I have started this Microsoft Excel. This is our worksheet. You know very well, in the previous chapter we have done. Today topic is selecting cell. How we can select cell, rows, column. You often need to select group of cells to perform the various operations such as copying, moving, inserting or deleting. Selecting can be made in the following ways. Like if you want to select a rows and column, then you can click on the rows, then full row will be selected. Remember, we have to click here for selecting the rows. If you want to select the second row, click here. Second row will be selected. मतलब पूरी row select हो जाएगी. Like that, we can select the column. Click on the column heading. अगर हम column heading पर click करेंगे तो column heading select हो जाएगी like that. 2, 3, 4, E, F, G जो भी आप column करना चाहो. Or if you want to select the full row, full sheet, entire worksheet, then press the Control A, Control plus A. Control is a shortcut command. It is Control A for selecting entire worksheet. Otherwise, one option also there. If you want to select the entire worksheet, then click here. This is the option here. When you click here, then your worksheet will be selected. See, you can see now. Now it is selected. Next thing, selecting adjacent rows and column. Select the first row. First of all, you have to select first row. After that, hold down the shift key on your keyboard. One shift key is there, press it. And now select on the fifth row. See, this way you can select adjacent rows and column. Now row मैंने क्या की है, select कर दी है. Now next is non-adjacent rows and columns. Click on the first row like that. Click it. After that, hold down the Control key while you select the other rows or column for selection. Control key, remember, for non-adjacent cell. Control key press किया. Now I want to select fifth row. Then click on the fifth. See, now you have selected two rows. एक तो second और एक fifth. अब see, adjacent rows and column. Adjacent का मतलब क्या रहेगा कि जब हम फर्स्ट रो या कोई भी रो सेलेक्ट करते हैं, शिफ्ट प्रेस करके हम नीचे वाले किसी भी रो पर क्लिक कर देंगे तो वो 2 से लेके 7 तक एक ग्रुप में रो सारी सिलेक्ट हो जाएंगी. दिस इज एडजेसेंट, मतलब इसके साथ में लगती हुई सारी रो सेलेक्ट हो जाएगी. बट अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी पहले तो सेकंड रो सेलेक्ट हो, सेकंड रो में डेटा है हम वो कॉपी करना चाहते हैं, और एक फोर्थ रो में डेटा है हम वो कॉपी करना चाहते हैं, थर्ड रो को स्किप करना चाहते हैं, तो हम कंट्रोल की प्रेस करेंगे. कंट्रोल की प्रेस किया, 4 नंबर पे क्लिक किया, अब हमारी 2 सेलेक्ट हो गई हैं. सपोज नाउ आई वांट टू सेलेक्ट द 8th रो. अब हम कंट्रोल की प्रेस करेंगे, 8th रो पे क्लिक करेंगे. सी, अब हमारी सेकंड, फोर्थ एंड 8th रो सेलेक्ट हो चुकी है. नाउ वी कैन परफॉर्म एनी एक्शन लाइक कॉपी एंड पेस्ट. हम कॉपी करना चाहिए, देन you know very well what is the short command of copy. Control C. कट के लिए Control X. तो इस तरह से हम अपनी रोज या कॉलम्स को सेलेक्ट कर सकते हैं.
ओके, आपको एक लिख के दिखाता हूँ मैं, लाइक दैट समथिंग वी हैव सेलेक्टेड। सी, अब देखो हमने सेलेक्ट किया वन रो, प्रेस द कंट्रोल की, नाउ इट इज ऑल्सो सेलेक्टेड। कंट्रोल की को प्रेस करके रखना है, और 10th, इस तरह से हम अपनी रोज और कॉलम को सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, दिस वे वी कैन सेलेक्ट। आफ्टर दैट एंटरिंग नंबर एज टेक्स्ट, डेट एंड टाइम। To enter number as text, place the apostrophe before the number. जब भी हम अपना टेक्स्ट कोई भी टाइप करेंगे तो उसकी अलाइनमेंट ध्यान रखिएगा कि उसकी अलाइनमेंट हमेशा लेफ्ट साइड रहेगी। ये देखो नंबर हमने क्या करा है, टेक्स्ट वो किस में आ रहा है, लेफ्ट साइड में। अब जब भी हम अपना नंबर टाइप करते हैं तो वो उसकी अलाइनमेंट क्या रहती है, राइट साइड। देखो राइट साइड आ गया, राइट साइड नजर आ रहा है। तो अगर हम अपने कोई भी नंबर को एज ए टेक्स्ट टाइप करना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अपोस्ट्रोफी टाइप करना पड़ेगा, और उसके बाद हम कोई भी नंबर डाल दें तो वो एज ए टेक्स्ट टाइप होगा। अब ध्यान दें आप कि जो इसकी अलाइनमेंट क्या हुई है, लेफ्ट। लेफ्ट अलाइनमेंट किसकी होती है, टेक्स्ट की। इट मीन्स ये भी टेक्स्ट फॉर्मेट में बन गया है। सो दिस इज द वे to enter a number as text. Next is to enter date or time in a cell. Type the number or something. See, हमने डेट यहां पर एंटर की है, देखिए डेट हमने एंटर कर ली। अब इस डेट के फॉर्मेट को हम चेंज करना चाहते हैं। इसकी फॉर्मेटिंग किस तरह से की जाए, मतलब इसका टाइप क्या रहेगा फॉर्मेटिंग का, तो हम इसकी फॉर्मेटिंग कैसे चेंज कर सकते हैं। देखिए होम टैब के अंदर यहां पर हमारे पास है फॉर्मेट, फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे। आफ्टर दैट फॉर्मेट सेल ऑप्शन, हमने इस पे क्लिक करना है, फॉर्मेट सेल ऑप्शन। अब आपके पास एक डायलॉग बॉक्स नजर आएगा, ये है फॉर्मेट के लिए। हमारा जो नंबर जो भी हमने टाइप किया है, लाइक अगर हम जर्नल कर देंगे तो उसका कोई फॉर्मेटिंग नहीं रहेगा। अगर हमने नंबर टाइप किया हुआ है, हम चाहते हैं कि उसके बाद 2 डेसिमल नंबर आए तो 2 डेसिमल आएंगे। फिलहाल हम देखते हैं डेट के लिए कि डेट की फॉर्मेटिंग किस तरह से की जा सकती है। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स आ गए हैं। हमने डेट किस तरह से टाइप की थी, अब हम चाहते हैं कि डेट हमारी इस तरह से हो, जैसे वेडनेसडे मार्च 14 2001, या फिर इस तरह से 14 मार्च 2001। मतलब क्या आ रहा है, पहले डेट फिर मंथ का नेम टाइप हो रहा है और उसके बाद ईयर। अब हम चाहते हैं यहाँ पर वेडनेसडे इस फॉर्मेट में वो डेट कन्वर्ट हो जाए, तो ये फॉर्मेट हमने सेलेक्ट किया और आफ्टर दैट प्रेस ओके की। अब आप देख रहे होंगे जो मैंने डेट डाली थी उसका फॉर्मेट चेंज हो गया है, संडे फरवरी 9 2020। इस तरह से हम इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं डेट की, जिस भी फॉर्मेट में आपको चाहिए हो। उसमें एक नंबर था, अब हम ना यहाँ पर नंबर टाइप करते हैं कुछ लाइक 15050। आफ्टर दिस नंबर आई वॉन्ट 2 डेसिमल नंबर। मुझे क्या चाहिए यहाँ पर ना, इस पॉइंट के बाद, या हम ऐसे लिखते हैं 50 रुपीज और 50 पैसे। बट अब क्या हो रहा है, हमने तो 15 रुपीज 50 पैसे हमने टाइप किया, बट आया क्या 50.5। आफ्टर 5 आई वॉन्ट 0। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका फॉर्मेट चेंज करना पड़ेगा। सेम वही ऑप्शन, होम टैब में फॉर्मेट ऑप्शन, फॉर्मेट के बाद सेल, फॉर्मेट सेल आ गया जो पहले हमने ओपन किया था। ये देखिए अब हमने यहां पर सेलेक्ट करना है नंबर, क्योंकि हम किसकी फॉर्मेटिंग कर रहे हैं, अब नंबर की। यहां हमने सेलेक्ट करना, देखो सैंपल में आ गया 50.50, क्योंकि यहाँ पे हमने डेसिमल प्लेसेस कितने दे दिए, 2। अगर हम 2 देंगे 2 आएगा, 3 देंगे तो 3 आगे पॉइंट्स आ जाएंगे, मतलब 3 प्लेस वैल्यू आ जाएगी। ओके 2 है, ओके हमें यही चाहिए थी, हम ओके कर देते हैं। यहाँ पर देखिए हमारा नंबर का फॉर्मेट चेंज हो गया है।
तो इस तरह से हम किसी भी टेक्स्ट की या नंबर की या डेट की फॉर्मेटिंग को इजीली अप्लाई कर सकते हैं. ओके बॉयज, सो दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू एंड डू प्रैक्टिस